Thank you and good evening everyone. I am Nishant Andrews and the moderator for today. So the topic that we are looking to discuss is how are our communities waking up to ecological challenges. I mean, if I take a minute to talk about it, there is historical evidence when it comes to India that communities are the first ones to take up the challenge and to take up the fight when it comes to meeting the ecological crisis and the challenges. I mean, if you look at the Chakra movement, if you look at the Johars in Rajasthan, we have had communities waking up to these ecological crises for a long time, and they have had their own ways of picking up the solutions and innovating solutions. I mean, if we talk about some recent times, we have seen the people from Nagaland coming together to save the almond falcons. We have seen the people from the communities of Rajasthan coming together to save the deposit cranes. We have the Khasi and the Jaintia tribes who save the nature in their own way to make them into bridges, and we also have Morning Star to talk more about it. So without taking much time, I would like to start the session, and for that I would ask the first question to Morning Star. I would love if you could explain the nature of your work that you do at the Living Bridge Foundation, and how does that tie up to the culture and the philosophy of the Khasi and the Jaintia tribes. Okay, so first of all, I'd like to thank the Balipara Foundation team for organizing this. So, a great pleasure for me to be here part of this discussion. So, first of all, I'm the founder and the chairman of the Living Bridge Foundation, one of the grassroots voluntary organizations in Meghalaya, working for reviving, rebuilding and maintenance and conservation of the living heritage of our community. So if you have heard about the word living bridges, so these are a kind of bioengineering, engineered by our great ancestors, great uncles in the 1,000 years back. Until today, we still have these bridges and we still use it. So it's very connected with us because, I would give you to, bring you back to my village where I live. And in my village, we have a committee called Heritage Committee, where they are the people who own the customs. They are customary heads of the village. They are the one who owns this heritage, and they promote and they protect. In the sense that, we have about 20 root bridges. Imagine one single village, where these are like 600-year-old, 700-year-old. These are, a marvel of our community. So, my foundation take part with the community in order to pay respect to the, to our ancestors. And also, we collaborating with many indigenous communities, especially in terms of traditional governance, because at the most powerful, at the grassroots, they are the one who owns the land and who are the ones who governs the village. So through a conservation part is that we are getting involved with them, especially the young people, because we saw that this knowledge, they are the knowledge which is not only one generation can be work or can be getting involved. It's passing knowledge from generation to generation. So basically, it's from the elder, our young, and our future. So these are a bit few of introductions. Maybe we can have a discussion later more. Thank you, Morning Sir. I think the culture and the philosophy that is inherent in the Khasi and the Jaintia tribes is something that we can explore. So if you want to talk about that, because I feel that it has a direct link to the work that you do. Okay, so taking example, what we have learned from these living bridges. So remember, we call, in our term, we call living architecture, because not only bridges we have in the valleys, because we belong to what Khasi subtribe, which is a subtribe of Meghalaya, Khasi. So in our place, we live down the valley with a very rough terrain, So we always have teachings. Our elders, they would, because we had an oral tradition long time back. So they used to teach us by telling stories. So these are things that, as a young people now,
we still have the connection in the sense that we learn by moral lessons. Example, like we have a word called kamai yakha, kamai kha. It's like earn with honesty. Earn with honesty. Be honest. Be transparent. So these are knowledge that taking back all of you, that the process how we weave the roots, how we weave them. It's all about our dedication, our hard work, and a strong unity as a community to have this beautiful, very strong root bridges. The more older, the more stronger they are. So, thank you. I think that does ring a sense of semblance with one of my experiences. I mean, as you were talking, I was reminded of this tribal watch that we launched, that we as a Tata Steel Foundation launched last year in collaboration with Titan. Tribal watch being, it basically goes counterclockwise. And when people asked us what is the reason behind having a clock that goes counterclockwise, the answer was very simple. So when we had a chat with the Santhal communities in Jharkhand, the Ho community and the Oraon community, we got to know the importance of the counterclockwise motion in their rituals, in their traditions. When they're tilling the fields, when they are plowing the soil, when they are going round the fireplace, it's all counterclockwise. But the moment we say anti-clockwise, we're kind of denying that knowledge that they're carrying. So, I mean, your example of Kamai kind of brings that kind of a semblance of how we can put forward the traditional wisdom, the tribal wisdom that is there, and find solutions to the ecological crisis that we face today. My next question is to Munmuni. Munmuni, मॉर्निंग स्टार तो दो समुदाय के साथ काम कर रहे हैं और वो उनमें से एक समुदाय को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए मोबिलाइजेशन थोड़ा आसान हो जाता है अपने लोगों से बात करने के लिए. बट मैं जब आपकी बात करूं तो आप मिशन कम्युनिटी से हैं, बट आपके रिवाइल्डिंग के मिशन में देयर आर मल्टीपल ट्राइब्स, बहुत सारे समुदाय आपके साथ जुड़े हुए हैं. तो आप उनको लामबंदी या फिर मोबिलाइजिंग आप उनकी कैसे करते हैं? व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स यू, और व्हाट इज द कॉमन बेस वेयर जहां पे काफी समुदाय मिलके आपके काम के लिए आते हैं आगे और उस काम के लिए अग्रसर होते हैं? Kalipara Foundation team also thank you. मैं मुलाई काथोली, मेरा पिताजी का फॉरेस्ट, वहाँ पे हम लोग मिसिंग कम्युनिटी ट्राइब है. वहाँ पे हम लोग का ट्राइबल कम्युनिटी और असमीज कम्युनिटी और बिहारी कम्युनिटीज है. हम तीन कम्युनिटी में वहाँ पे मैं रिपीट करूँ क्वेश्चन. मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जब अपने मिशन के लिए लोगों से जुड़ती हैं तो वो एक ही समुदाय के नहीं होते, दे आर नॉट फ्रॉम द वन ट्राइब, एक ट्राइब से नहीं होते हैं. तो आप कैसे दूसरे ट्राइब के लोगों को मोबिलाइज करते हैं और वो क्या एक पॉइंट है जिस पे आप सबको एक साथ लेके चल पाती हैं इस मिशन के लिए? तो पहले तो बहुत मुश्किल था वो तीनों को जोड़ने से, और बहुत आसानी भी नहीं था. तो इतने साल से पिताजी ने वो फॉरेस्ट बनाकर आज 46 इयर्स हो गया फॉरेस्ट. तो पिताजी के टाइम पे बहुत ताप था. तो अभी मैं 3 साल से और उससे आगे बचपन से ही उस लोग के साथ मैं जुड़ा हूँ. लेकिन ये ट्राइब को, कम्युनिटी को मतलब एक साथ में काम करने के लिए इतना 5-6 साल लग गया उन लोग के साथ काम करने के लिए. हम लोग ऐसे जुटा हूँ वहाँ पे जो भी पिताजी के साथ खाना आता है उन लोग के साथ प्लांटेशन का काम होता है, तो उसके साथ जुड़ा रहता हूँ. और ये जो एग्रोफोरेस्ट्री वहाँ पे बारीपाड़ा में अभी शुरू कर रहा है, 2 साल के साथ हुआ है. उससे कम्युनिटी के साथ थोड़ा
मतलब तीनों कम्युनिटी के अच्छा से मतलब अभी का टाइम बहुत अच्छा से जुड़ के मतलब मिल के काम कर रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, तब अभी जो ऐसा हुआ है हमें 3 साल से मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था बचपन से, वहाँ पे एक एलपी स्कूल है, वहाँ पे बचपन से मतलब ये क्लास 1 तक ये स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ। देखो ये क्या, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का बहुत प्रॉब्लम है, इतना एजुकेशन का पीपल वहाँ पे नहीं है, अभी है लेकिन 5 साल आगे तक इतना नहीं था। तो उस लोग को मैं समझाना, उन लोग को साथ जुड़कर मैं यही उन लोग को मैं बताता हूँ, देखो एजुकेशन के ये हम लोग का ट्राइबल कम्युनिटी का साथ साथ काम भी बहुत जरूरत है। जो भी हम लोग का ये समुद्र का किनारे में हम लोग रहता हूँ, वहाँ पे मछली पकड़ता है, वो बेच के भी मतलब पैसा कमा सकता है। वहाँ पे इंडियन जो भी बहुत है वो भी बेचकर, और खेती बाड़ी बहुत करता है वो भी बेचकर मतलब पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ना हम लोग को एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के थ्रू ही हम लोग कम्युनिटी जो भी वहाँ का और 2 ट्राइब का कम्युनिटी सब तब भी जुड़ मतलब इकट्ठा करके काम करके आगे बढ़ूंगा। एजुकेशन नहीं है तो ये बहुत मुश्किल है, तो आगे जाने तक के लिए एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ ये समुद्र का साथ जुड़कर जो भी हम लोग काम करता हूँ, वो मछली पकड़ता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, और वहाँ पे बहुत कैटल फार्म है, कैटल फार्म में बहुत गाय भी है और गाय का दूध भी बेचता है। ये लोग ही काफी नहीं है, तो ऐसे ऐसे हम लोग बहुत मुश्किल से अभी तक खड़ा हूँ। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र का आइलैंड है, वो मुश्किल होता है लेकिन लोगों को समझना, और समझना भी वो लोग इतना आसानी से नहीं समझता है। तो अभी हम लोग 3 इयर्स हो गया वहाँ पे प्लांटेशन का काम पे ट्राइबल कम्युनिटी के साथ अभी तक काम कर रहा हूँ। वो काम में बहुत सक्सेस मिल रहा हूँ, उन लोग का सपोर्ट है, और मैं यही बोलना चाहूँगा ये हम लोग यहाँ पे जो इतना सारा आदमी इकट्ठा करके बैठ रहा हूँ ना, जो मैं कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के बारे में मैं बोलना कुछ चाहता हूँ। ये धरती मतलब ये पेड़ पौधा को मतलब इतना काट रहा है, और बहुत क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत मतलब यहाँ पे बहुत बोलता है, लेकिन असल में वो काम मतलब कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये इतना नहीं सोचता है। हाँ, I think उन्होंने आपने बहुत ही 2-3 बहुत ही important points छुए हैं, तो हम उसको वापस आएंगे। One is how education is important, आपने बोला कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरा is हमारे कितने सोल्यूशन आज के कार्यक्रम प्रैक्टिकल बेस्ड है, ना कि सिर्फ थॉट बेस्ड है और थ्योरेटिकल है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुए हैं, उन पर हम वापस आएंगे। मेरा अगला सवाल न्यूनू से है, डेवलपिंग ऑन व्हाट मुनमुनी हैज सेड, आप लॉन्गडिंग कम्युनिटी और लॉन्गडिंग से आप हैं, लॉन्गडिंग अरुणाचल प्रदेश से, वहाँ पे आप विमेन स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट हैं। इज दैट माय स्विच only yeah, so if you can throw light, क्या आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि आज के तारीख में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्गडिंग में कम्युनिटीज कौन से इकोलॉजिकल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट उनके रिस्पॉन्सेस क्या हैं, हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग टू दीज चैलेंजेस? Thank you so much. Hello everyone. First of all, I'm very much thankful to Palipara Foundation for giving me this golden opportunity, and it is my very first time to speak in front of such a learned person. My respect goes to every one of you. And coming back to the question, sir, I belong
to a Wancho tribe of Longding district in Arunachal Pradesh. And the ecological crisis that we are facing in a present scenario in our areas or in our district, it is deforestation because of the agricultural practice that we are being practicing. वो हम लोग का जगह में I will be comfortable in both language, like in our areas, most of our people they practice jhum cultivation for their livelihood. तो उसी का कारण deforestation बहुत होता है, and this is a very major problem that we are facing in the present scenario. And the second is water scarcity, water crisis, and the water crisis is because of again the jhum cultivation. जूम कल्टीवेशन ही हम लोग का जगह में एक लाइवलीहुड का सोर्स है, उसी का कारण वाटर क्राइसिस होता है, एंड देन बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज़्यादा होता है हम लोग का जगह में, और उसी का कारण से हम लोग का जो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि आदमी को वहाँ पे रहने के लिए जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करके उसी से ही हम लोग खाना पीना लाइवलीहुड कमाता है, उसी से ही हम लोग जीता है, जीने का एक जरिया वो होता है हम लोग का जगह पे। तो उसी का वजह से हम लोगों को ये जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस जो करना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पाता है, एंड द रीजन बिहाइंड इज वी आर लैकिंग ऑफ एजुकेशन वहाँ में थोड़ा कम होता है, एंड अवेयरनेस कम होता है। तो आज का ज़माना में हम लोग we are appealing to the concerned authority or concerned department कि हम लोग का जगह में अभी तक जूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस हो रहा है, जिसका वजह से वाटर क्राइसिस अराइज हो रहा है, जिसका वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या अवेयरनेस हम लोग को चाहिए, वो अवेयरनेस स्प्रेड आउट करने के लिए हम लोग को कंसर्न डिपार्टमेंट से एंड देन टू ऑल द एनजीओस, जो भी एनजीओ से हम लोग को हेल्प कर सकता है, हम लोग वो हेल्प और ज़्यादा ज़रूरत है लॉन्गडिंग पे। वी नीड दैट अवेयरनेस, वी नीड दैट हेल्प। तो वही चीज़ को हम लोग का आदमी लोग अभी फेस कर रहा है, एंड देन वी आर फेसिंग इट इन वेरी ड्रास्टिक वे। एंड बिफोर in the ancient time, like we say, many people they used to practice this jhum cultivation, but we can see in the present scenario, like आजकल थोड़ा देखने में उसको like kind of 1% or like 2% थोड़ा कम होते जा रहा है। कम होने का वजह यही है कि we are young generation like us, like we have found student union organization, like I am the first founder president of Women Wing in student union. तो हम लोग we are trying our best to cope up with this, we are trying our best to spread the awareness of the impact which is caused by the practice of this the negative impact, we say negative impacts which is caused by the practice of jhum cultivation, and the loss that we are facing, the water scarcity that we are facing। तो उसी चीज को हम लोग थोड़ा धीरे-धीरे हम लोग कोप अप कर रहे हैं, एंड देन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए अगेन। और हम लोग का मांग और हम लोग का अपील यही है कंसर्न डिपार्टमेंट से भी कि हम लोग को और थोड़ा अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन के लिए भी अवेयरनेस चाहिए, एंड देन जो नेगेटिव इम्पैक्ट जूम कल्टीवेशन से होता है उसको रिडक्शन के लिए भी अवेयरनेस चाहिए। तो we are our community, our people are responding to it in a very kind of थोड़ा पॉजिटिव वे में भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा उसको अवेयरनेस कमी है, हम लोग को मालूम है, इसी का वजह से हम लोग उसको रेस्पॉन्ड करना, कोप अप करना, अभी we are on the process to cope and to respond to this. I think the first step to solving any problem is the awareness, and I think if you guys are there, if your community is there, solution will be nearby sometime soon. Yes. Rabindranath Sahu ji, सबको मेरा नमस्कार।
जैसा उन्होंने बताया कि इनके यहाँ जो कम्युनिटी है उनको रियलाइजेशन है कि जूम कल्टीवेशन से प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रही हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लोग। अगर मैं आपसे आपकी फील्ड के बारे में पूछूं, आपने कुछ 30 साल का काम किया है ऑलिव रिडले टर्टल्स के कंजर्वेशन, तो थोड़ा सा साहू जी मुझे इस बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिएगा, बताइएगा कि आपको कब पहली बार ये रियलाइजेशन हुआ कि मानव जाति का दखल अंदाजी से ऑलिव रिडले टर्टल्स का जो मास नेस्टिंग है वो बर्बाद हो रहा है। पहले वो कौन सी प्रैक्टिसेस थी जो ऋषिकुल्या के आसपास, गंजाम के आसपास, उड़ीसा साइड में प्रैक्टिस करती थी, और अभी हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आप बताना। सबको मेरा नमस्कार। जो आज मणिपुरा फाउंडेशन हमको जो इन्विटेशन भेजा है, हम उड़ीसा से आया। मेरा घर जो बंगाल खेड़ी जो बंगाल के पास, तो उड़ीसा तो साइक्लोन है। मेरा जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट, एवरी ईयर हर साल साइक्लोन है। मेरा घर से आधा किलोमीटर जो कोस्टल, अभी तो दुनिया का जो टर्टल जो आता है, जो मेरा टर्टल जो ऑलिव रिडले सबसे ज्यादा उड़ीसा कोस्ट को आता है। एवरी ईयर 12 लाख टर्टल उड़ीसा कोस्ट को आता है। फिर पहले से जो टर्टल, जो लोग क्या करते हैं ना, जो टर्टल बीच को तो नेचुरल प्रोसेस से आता है, गांव लोग उनका अंडा खाते हैं, और कुछ लोग भी 90 से पहले जो लाइव टर्टल को जो वेस्ट बंगाल से एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेन बाई ट्रक से। जो 1972 जो वर्ल्ड लाइफ एक्ट आया, पहले गहर माथा सेंचुरी है जो भितरकनिका के अंदर, वो जगह में पहले टर्टल के बारे में दुनिया लोग को पता था, लेकिन ऋषिकुल्या बीच जो है किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि हमारा बीच में भी लाखों टर्टल आता है। जो साल में अभी 5-6 लाख टर्टल आके जो अरिमोड़ा करता है, नेस्टिंग करता है। वो टाइम में मैंने 1993 से हमारा काम शुरू किया है। हमारे गांव लोग क्या करते हैं ना, टर्टल जब नेस्टिंग करता है बीच में, जो मछुआरे लोग फिशिंग करने के लिए बीच जो सी को जाते हैं, जो मछली कम हो जाएगा, वो टाइम क्या होता है ना, जो विंटर में टर्टल सब आते हैं बीच को ऊपर अंडा देने के लिए। फिशर कम्युनिटी लोग क्या करते हैं, वो अंडा से पूरा बैग भर जाए कि टर्टल 100 to 160 एग्स लेग करता है, वो अंडा लेके गाँव आ जाता है। वो उसी टाइम क्या होता है ना, एक मुर्गी का अंडा 50 पैसा वो प्राइस था। तो कछुआ का अंडा तो मुफ्त में मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। वो लोग जो फिशरमैन कम्युनिटी जो उनका लाइवलीहुड बहुत प्रॉब्लम था, वो टाइम मछली का भाव इतना नहीं था, फिर भी वो अंडा के ऑमलेट बना के कोई बॉयल करके वो खाते थे। लेकिन हमने देखा ऐसे तो खाएगा तो पूरा नंबर तो बढ़ने का चांस नहीं। वो टाइम क्या हुआ था ना, हमारा जो बीच में 2-3 दिन टर्टल का जो मास टेस्टिंग होता है, एक रिसर्च पर्सन डॉक्टर विभास पांडव, हमारा जो उड़ीसा कोस्ट में 480 किलोमीटर बीच है, और मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो है गंजाम, जो गंजाम बीच जो होता है 54 किलोमीटर में 28 विलेज, फिशरमैन विलेज। वो मेरा गांव है पुराना बंद, जो बालीबंद पंचायत का, जो पुराना बंद का वो लोग भी कछुआ अंडा खाते हैं। मेरा गाँव पंचायत में 4 विलेज था, पुराना बंद, गोकुलकोदा, पोड़मपेटा, कंटिया। वो लोग क्या करते हैं, रात को जो फिशिंग के लिए जाते हैं, सुबह कछुआ का अंडा लेके गाँव में बेचते खाते। लेकिन उसी टाइम हमको मालूम नहीं था ये टर्टल क्या होता है, ये एंडेंजर्ड होता है, ये जो ऑलिव रिडले टर्टल का स्पीशीज भी किसी को मालूम नहीं था। जो साइंटिस्ट लोग हमको आके हमारे साथ जो 93 दिसंबर का महीने में हमारे साथ आके वो ट्रैकिंग करके मेरा घर तक आके पहुंच गए। हम उसी टाइम हमने स्कूल में पढ़ाई करते थे। इनके साथ हमारे साथ जो विकास पांडव रात को रुका, हमको टर्टल के बारे में बताया। टर्टल कभी देखा है और साथ तो बीच में टर्टल आता है, लेकिन देखा है, लेकिन टर्टल के बारे में हमको मालूम नहीं। वो लोग क्या करते हैं ना, वो सब अंडा खाते हैं, वो बेचते। उसी टाइम वो साइंटिस्ट लोग हमको बताया नहीं ये सब इलीगल है, आप लोग अभी जो काम जो चल रहा है अभी उसको बंद करने के लिए कोशिश करो। हम 3 लड़का वो गांव में सर का बात सुन के हमने कंजर्वेशन शुरू किया। वो
अंडा खाने का जो कोचिंग था 4 गांव को बंद करने के लिए हमको 6 साल लग गया। वो टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई नहीं था, फिर हमारा हाथ में पावर भी नहीं था, हमने तो गांव वाला है, हमारा बात सुनने वाला गांव लोग तैयार नहीं थे। फिर हम बीच को डेली इवनिंग 6 बजे जाते हैं, सुबह 7 o'clock को वापस आते हैं। पूरा 7 किलोमीटर मॉनिटरिंग करते हैं, रात को कितने टर्टल आते हैं, कितने टर्टल अंडा देता है, कितने टर्टल का मोर्टेलिटी होता है, ये सब पूरा रिकॉर्ड बना के हमको देते हैं। फिर मेरा गांव से छोड़ के मेरा बड़ा टाउन है, मेरा डिस्ट्रिक्ट का बरमपुर तक 30 किलोमीटर तक हम गया, उससे आगे पूरा दुनिया देखा नहीं। जो साइंटिस्ट के साथ जब हमने उनके साथ जो फ्रेंडशिप हो गया, हमको वो दुनिया दिखा। क्योंकि जो गाड़ी मेरा गांव में 1 महीने को एक ही आभूषण गाड़ी जब आएगा ना, हम गाड़ी के पीछे भागते थे। फिर अभी आज का जमाना में डेली 40-50 गाड़ी हमारा पीछे भागता है स्टार्टिंग के लिए। अभी जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडा खाने का पूरा मेरा पंचायत में बंद किया। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट का 54 किलोमीटर, जो 54 किलोमीटर में 28 विलेज को ये बंद करने के लिए हम कोशिश किया। धीरे धीरे काम चलने के बाद जो हमारा जो कुछ गांव का लड़का को लेके मेरा जो बस का गवर्नमेंट सर्विस हो गया, वो देहरादून आ गया। वो मेरा बस मेरी को बोला देखो मैं तो चले जाता हूँ, अभी तुम ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के ये कंजर्वेशन शुरू करो। 98 को हमने हमारा गांव का जो यंग जनरेशन लड़का को लेके, पहले तो 28 लड़का को लेके ऋषि कुल्या सी टर्टल प्रोटेक्शन कमेटी परमिशन किया। 2003 को रजिस्ट्रेशन किया। वो काम हमको थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ गया, टर्टल का लाइफ साइकिल क्या है, कब नेस्टिंग होता है। ये जो ऑलिव का बैटिंग होता है नवंबर दिसंबर जनवरी सी में बैटिंग होता है, नेस्टिंग करते हैं। जो आरी वाला जो लास्ट नंबर टर्टल आता है फरवरी 2nd वीक से मार्च के अंदर, फिर अंडा देने के बाद पहले जो 45 डेज में बच्चा पैदा हो जाता है। और आज का जमाना में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से 50 डेज होता है। वो सब देखने के बाद खुद आइडिया आ गया। टीवी पे हमारे वो टाइम में टीवी चैनल नहीं था, एक ही चैनल में हमारा जो प्रोग्राम जब आया, हमारा जो रिलेशन वाला सब टीवी पे देख के हमको बहुत मैसेज दिया है। वो टाइम में 85 से हमारा घर में एक लैंडफोन था, वो लैंडफोन में फोन में हम बात करते थे सबके साथ। अभी तो सबका हाथ में मोबाइल हो गया, फिर भी हमको बहुत प्रॉब्लम हो गया क्योंकि फिशरमैन को जो अंडा खाने का जो बंद करने का, क्योंकि वो लोग हमारे साथ इतना फाइट है, आर्गुमेंट है। धीरे धीरे उनको समझाया सी टर्टल का अंडा नुकसान करेगा, सी टर्टल को मारेगा तो सी टर्टल जो समुद्र में जो मछली का पॉपुलेशन कम हो जाए। क्योंकि जो टर्टल जो अंडा देता है समुद्र में 365 डेज में 1 आवर के लिए बीच को ऊपर आते हैं अंडा देने के। बस ये 1 आवर में जो अंडा देंगे वो सी को चले जाता है। उनका जो क्या बोलते हैं केयर, जो अंडा को रक्षण जो बोलते हैं उनको, वो मम्मी टर्टल का नहीं है। सी टर्टल जो मेल वाला कभी बीच को आता नहीं, फीमेल वाला आके अंडा देके वो चला जाएगा। वो अंडा को जैकल, डॉग, हाइना इतना सब खा के नुकसान करेगा, फिर भी आदमी खा के नुकसान करेगा। वो जो वाइल्ड एनिमल खाने से इतना दिक्कत नहीं, आदमी खा के बेचेगा। वो बेचेगा तो उनका पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा। धीरे धीरे एकदम इतना सब गांव का लड़का को हमने जो ग्रुप बनाया, पूरे गांव लोग को जाके समझाया, देखो सी टर्टल सी में रहेगा, जो अलीविडली जो मरीन टर्टल जो समुद्र में 7 स्पीशीज का टर्टल होता है। इंडिया कोस्ट में जो 5 जाति का टर्टल दिखाई देता है, जो एक अलीविडली सबसे छोटा टर्टल होता है, इसका वेट होता है 40 kg to 60 kg। इसके बाद ग्रीन टर्टल, एक लगर हेड, एक क्या बोलते हैं ये लेदरबेक, और जो हॉक्समीट ग्रीन टर्टल, लगर हेड, अलीविडली, ये जो 4-5 जाति का टर्टल जो आता है। और फ्लैटबैक है, क्या कैम्सविडले और ब्लैक टर्टल, जो 8 जाति का टर्टल इंडिया कोस्ट में दिखता है। लेकिन हमने देखा जो अलीविडले का पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टर्टल अभी का जो सीजन में 12 लाख टर्टल उड़ीसा कोस्ट में नेस्टिंग करता है। जो पहले 3 जगह था, जो गहरमाथा नाम सुना होगा भितरकनिका का, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, वो जगह किसी को अलाउड नहीं। और दूसरा ऋषिकुल्या बीच, तीसरा है देवी रिवर माउथ। लेकिन अभी इलीगल फिशिंग की वजह से उड़ीसा कोस्ट में 480 किलोमीटर में एवरी ईयर
10,000 टर्टल जो इलीगल फिशिंग से मरता है, मदर टर्टल। ऐसा मरेगा तो टर्टल का पॉपुलेशन बहुत कम होगा, क्योंकि टर्टल का सर्वाइवल रेट 1/1000। इनको कैसे कंजर्वेशन करना है? लोग तो समुद्र में मछली पकड़ने का टाइम वो मारेगा, फिर बीच में चक्कर। सॉरी आपको बीच में रोकने के लिए, ये सवाल के लिए मैं आपके पास वापस आऊँ, थोड़ा सा संक्षेप तरीके में इसको खत्म करके फिर अभी क्या हुआ ना, अभी स्टूडेंट को लेके हम काम शुरू किया। जो स्कूल स्टूडेंट्स, एसएचजी ग्रुप, फिशरमैन कम्युनिटी, यंग जनरेशन, अभी धीरे धीरे पूरा मेरा डिस्ट्रिक्ट का 28 किलोमीटर का एरिया को पूरा कंजर्व कर दिया। अभी जो लोग अंडा खाते हैं, जो बेचता है, अभी एकदम जीरो मोर्टेलिटी कर दिया, सबको लेके कंजर्वेशन। इसीलिए मेरा जो टर्टल वर्ल्ड में मैक्सिको, कोस्टारिका जो नंबर जैसे था, अभी हमारा उड़ीसा में गैर माथा ऋषिकुल्या में हर साल 12 लाख टर्टल आके नेस्टिंग करता है। अभी ये काम करने के बाद पूरा गांव को दुनिया में, मेरा गांव टर्टल विलेज का नाम लिया पूरा इंडिया में। अभी दुनिया भर लोग टर्टल देखने के लिए, सब तो ऑनलाइन में हमको हमारा नंबर पकड़ के हमको फोन करते हैं टर्टल देखने के लिए, जो जिसको इच्छा होता है। सब पर आज का दिन कलकत्ता से फोन आया था, बेंगलोर से फोन आता है, सी टर्टल का सीजन में उनको हम अच्छा सर्विस देता है, कैसे रहना, कहाँ जाना है। अभी धीरे धीरे और एक कंजर्वेशन, हाउस पेरल कंजर्वेशन 2007 से किया, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल में IUCN के रिपोर्ट के हिसाब से 80% कम हो गया। वो भी कंजर्वेशन उड़ीसा में 18 डिस्ट्रिक्ट में काम किया। ये भी हमारा एकदम मेगा प्रोजेक्ट था। ये खुद का जो हमारा ग्रुप का हिसाब से, और रिवर बार्स इनका कंजर्वेशन, तो माइग्रेटरी बार्स भी हमारा जो ऋषिकुल्या रिवर के पास थाउजेंड्स आता है, इनको जैसे कोचिंग नहीं होना चाहिए, ये सब करने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2002 को आया। हमारा काम देख के हमको थोड़ा सपोर्ट भी दिया। अभी ये साल हमने मेगा प्रोजेक्ट का हमारा मिशन प्लाम ट्री, क्योंकि उड़ीसा में जो लाइटिंग की वजह से 11 इयर्स में 12,000 जो कृषक, जो एग्रीकल्चर, जो खेती में काम करते हैं, उनका डेथ हुआ। लाइटिंग सबसे ज्यादा होता है उड़ीसा पोस्ट में। अभी गवर्नमेंट ने ये इशू किया है हर जगह में प्लाम ट्री प्लांटेशन करने के लिए। हम खुद 50 डेज में 12,000 प्लाम ट्री हमारा जो 3 ब्लॉक में कम से कम 30 किलोमीटर एरिया में प्लांटेशन किया। ये सब करके करके हमको भी स्टेट का जो प्रेस्टिजियस बीजू पटनायक वाइल्ड लाइफ अवार्ड भी मिला, और बाकी 4 नेशनल अवार्ड भी मेरे को मिला। और गवर्नर से लेके चीफ, ये जो कलेक्टर से लेके यूनिवर्सिटी से लेके, अभी इंडिया में जो पूरा कोस्टल स्टेट है, हर जगह में जाके सी टर्टल का जो अवेयरनेस लक्षद्वीप से लेके अंडमान, तमिलनाडु से लेके पूरा कश्मीर टू कन्याकुमारी जैसा है, पूरा कोस्ट में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब स्टेट में जाके सी टर्टल का अवेयरनेस करने के लिए हम जाते रहते हैं। क्योंकि हमको विभिन्न जो अनुष्ठान है, हमको हर साल हमको इन्वाइटेशन आता है, क्योंकि हमको ये कंजर्वेशन की वजह से हमको सब जानते हैं, क्योंकि हमारा नाम किसी को मालूम नहीं था। सी टर्टल मानो तो अभी हमको पूरे एरिया लोग टर्टल रवि बोलते हैं। पूरा जो इंडिया में जो लोग आके टर्टल रवि बोल के हमारे गांव तक आ जाते हैं। हम अच्छा से सबको सर्विस देता है। लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट का अभी मेरा काम के लिए मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो क्या बोलते हैं हल्द्वानी वाइल्ड लाइफ एक जो पोस्ट भी मेरे को दिया है, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट से लेके जो नेचर वाइल्ड लाइफ सबको कंजर्वेशन करने के बाद 2 साल पहले टाटा स्टील फाउंडेशन ये हमारा काम देखे हमारा एरिया में काम शुरू किया, जो कम्युनिटी कंजर्वेशन, जो लोग जो टर्टल का जो काम करता है। क्योंकि अभी आजकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 6 मंथ फिशरी जो कम्युनिटी को फिशिंग करने के लिए जो ट्रैवलर जो मैकेनिज बोट में फिशिंग करता है, इनको बंद किया टर्टल सीजन में। ये लोग को लेके टाटा स्टील फाउंडेशन जो गोपालपुर, अभी हमारा गाँव में जो 4 जो फिशरमैन विलेज जो है, इनको मदद करने के लिए आया। क्योंकि लोग को हेल्थ के ऊपर काम करता है, प्लांटेशन के ऊपर काम करता है, बाकी जो मुर्गे फार्मिंग और जो बर्ड फार्मिंग, बाकी लोग को जो एजुकेशन गांव में जो लोग बच्चा लोग जो पढ़ाई करता है, इनको भी पढ़ाई के लिए जो मुफ्त में जो ट्यूशन जो होता है वो सब करता है। ये सब करने से हमारे गाँव लोग को भी मन में पूरा एकदम सबको ये कंजर्वेशन करने के लिए इच्छा है। फिर भी बीच क्लिनिक सबसे मुद्दा है। हमारा जो रिवर जो ऋषिकुल्या में एक रिवर है,
पूरा डिस्ट्रिक्ट का गार्बेज आके पूरा हमारा बीच में भर जाता है। जो बीच में भर जाता है, प्लास्टिक सबसे बड़ा मुद्दा है। प्लास्टिक जो टूटा हुआ चप्पल, प्लास्टिक बोतल और जो बोलता है थर्मोकोल, ये सब जो भर जाता है, ये इनको साफ करने के लिए पहले तो हम 2003 से जो बीच क्लीनिंग प्रोसेस काम शुरू किया था, अभी पूरा कंटिन्यू काम करने के बाद टाटा स्टील भी हमको यस्टरडे भी एक मेगा बीच क्लीनिंग प्रोग्राम था, वो 150 पुलिस कांस्टेबल को लेकर बीच क्लीनिंग का जो प्रोग्राम किया था टाटा स्टील की तरफ से। लेकिन मुझे जो बालीपुरा फाउंडेशन मुझे इन्वाइट किया, इसलिए वो प्रोग्राम छोड़ के मुझे गुवाहाटी आना पड़ा। और फिर भी वो काम भी अच्छा से हुआ। आगे तो बहुत अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि सबका भी मदद है, कंजर्वेशन सबके लिए जरूरी है। थैंक यू साहब जी, आपने बहुत सारी चीजें एक ही बार में हम लोग को बता दी एंड थैंक यू फॉर सच अ कैंडिड आंसर। अपने दिल से आपने जो बताया बहुत धन्यवाद। आपने एक पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बोला वो ये था कि देखो एक समय था कि लोग अंडे बेचा करते थे। जब 50 पैसे का मुर्गी का अंडा मिलता था, वो 1 रुपए में 10-20 अंडे बेच दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं एक लाइवलीहुड का एक क्वेश्चन था कि लाइवलीहुड कैसे सस्टेन करना है ना। तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील कि लाइवलीहुड is attached to the part of conservation until it is there. People or the communities whose livelihood is dependent on some of these activities, it is very difficult to get them away from all of this. So my next question is to Morningstar. Through your Living Bridges Foundation and the natural asset that you're creating of Living Bridges, what is the scope of ecotourism, or what is the scope of creating sustainable livelihood options for the community members through ecotourism today and in the future? I mean, what do you see? How big is the scope and how viable it is an option? As you know that what you talked about Meghalaya, people will talk about first is about the living bridges. Of course, we have the most natural crystal clear water. You can see the depth. But people will always try to ask where can I visit these new bridges. So yes, of course, in Meghalaya we have about 132 road bridges. Still more to explore, still more to find out. And also, we have seen a lot of interventions happening in Meghalaya, where we saw about the promotion of tourism is happening. And I've been a guy who always have a comment about tourism in my state, frankly speaking, because I'm coming from background of conservation. Our root bridges, they are natural fragile root structure, where we need to plan in such a way that tourism also could be promoted, and also this biodiversity or the heritage around should be sustainable, should be enriched. So these are the things that I always make a lot of comments about it. We see, yes, in many newspapers been written about. I comment about the influx of people of tourism in our state. We saw we have a 30 meters or 20 meters living bridges, and the height from the stream up to the bridge is like 28 meters to whatever. So we see a lot of influx where 1,000 people in a day could visit these bridges. These are routes they need to survive. So in our place, we have started now for 3 years to experiment or to create a kind of a pilot project where how can tourism could be promoted in the fragile ecosystem where we have these route bridges. We have our own parts of a very marble architecture, and our very important is about our culture, because we believe that protecting our own heritage means we are also enrich our own identity. Because for me, wherever I go, people also will always say Edward Rich. So we see we have 2 places in Meghalaya. If you have heard about the most famous, like the single decker in Maulanaung, which is the cleanest village in Asia, right? So we have also the double decker in Nongret village, which is down the valley of Cherrapunji or Sora. So
At these two places now, we see booming of tourism is happening. I've been, getting in touch with the heads, the chief of the village, because we see like a massive negative impact is happening around these bridges, because they are the keystone species for our community. They are the keystone species. So if we saw people are coming down, there are some people, some guides over there, and also we have some people who will go down there without proper knowledge about the place. So it's important to have tourism, yes, but also plan in such a way that how could we promote in this place, not to adopt any other place which they already promoted. So it's good to learn from other places where they already promoted, and also learn from them and learn the negative and the positive, the pros and cons, and then promote in your place. So in a sense that we saw also like the waste management. The leaders before us have spoken about waste management. Also, I want to add more a little bit about how also in our place, from a community where we live in the forest actually, our surrounding is with the forest. We have own sacred forest, we have a reserve forest, we have a community forest, we have different kinds of distribution of kinds of forests in the place. But we see, when the tourism is booming, there are two things, the culture and the nature. So we see on the trails, we see all the plastic, especially plastic bottles, because it's a high up, you have to climb 3,000 steps, So you climb up, down, you feel tired. So water will be there, what water? So you see all the way, all the trails, plastics, water bottles is there. So it costs, it will cost in the future. We see that if we don't change today, there will be an impact on the population of the waste, the population of bottles, instead of our natural things around. And also looking back about the culture perspective, we saw that before we have time to meet our friends, we have time to interact between our community. But when tourism comes, we lost the connection between the humanity, let's say, where our friends don't have much time to talk with us. They are busy in catering the guests, or it's a part of thing. But also, I always mention that it's important to choose a tourism where we all can have benefits, because we know that people live in cities. They want to find a place where they can suit themselves. Every day they live in metro with cars, with pollution, with noise, with so many people. They want to find a place where, by alone, they can sit in nature around. Where they can, nature bathing or something like that. So, for 3 years, we've adopted 3 villages now to experiment a pilot project on how tourism could be promoted in a village where we have this fragile ecosystem. So I want to be clear more about why we call it a keystone species. Yes, we built these road bridges with a Ficus elastica. I saw many, in the city also, there are Ficus tree here, Ficus elastica. I saw the roots are, coming down the branch. It's a good thing that also we see that in a place we believe that these trees are sacred to us. They are very connected to us. Because let me take you a little bit of history so that you could also understand a little bit. Like the first ficus tree, the first elastica in my village was brought from the Bangladesh, a small sapling. And because in our place before we were ruled by other tribes, they invade our land. So our ancestors fought back the war, and that's how we win. And in order to show the sign of victory, one of the great army in those times picked a sapling from the Bangladesh and planted in my village, which is 60 kilometers distance. And he's the first priest of our community, and he's the one who grew the first ficus trees. And that's how, when the tree grows, the alien roots come. And, the fig, the birds who eat, the fruits of this ficus tree spread all over the valley. That's why in our place we have the highest concentration of the ficus tree, and also we have the highest concentration of the living bridges. So besides sacred to us, we believe that these are the shelters for
birds because these ficus trees, they are like big trees. They can span like 50 meters to branch. So they are shelter for the birds, squirrels, and what the bad fruits, the squirrels eat the fruit, and also the branch, the rotten branch of the tree. This woodpecker used to stay there, and for us as a human being live around this place. So we got to use their roots to guide them as a bridge that we can walk for safety. So these are a very, a very unique knowledge that our great ancestors have invented. So we've seen a lot of research has been coming up. You see BBC, you see Nat Geo, whatever. So many PhD students have come up, written about these bridges. So I took this initiative as a young man to start this movement for the last 8 years now, to show that yes, we learn orally from our elders, and also it's our duty now as a younger generation, what we've experienced, that the others have given us, the same thing that we want also to give to the future generation. So the bridge before is nothing documented. So through our initiative now, through our initiative, we are adopting these bridges so that we can document how the growth process, the growth process, how they impact. Because before, we come to a place where I'm sorry to add more. I hope it's okay for you. We come from a place where we have the highest rainfall on Earth. Rainfall on Earth. But also, I would say that we are also the wettest desert in our place. Because in the winter, we have to beg for water. We have to buy water. So things are changed. Yes, because before, if you check on research, PhD students have written about 10-15 years we can build a road bridge. But for us, we can't say that. We can't say yes to that. It will take around 50-60 years to have a functional route that can hold our weight, 50 kg or 100 kg to walk on it. So we are, gathering all the young people from each village now to educate them, to learn their experience also, because what we have now, we're training the young architect, because we have like 20 living architects, the elders, who have been contributing for 30-40 years in building these bridges. So, through my foundation, we have already recognized their efforts. So through them, we're training the young people now, students, especially now we're focusing on dropout students, because they are the ones who will spend more time in the forest. Because, most of us, when we are free from study, we always spend time in the forest. We have to collect firewood to give to our parents for the cooking. So we're training them so that they will also take part to what this elders have been started. So bridging the gap for the future. So these are things that we are working now, and also to let you know, to inform you all that just this year we are celebrating the 2047 project. We adopt 30 road bridges because they are at risk. So the bridge, the things that we do today, we will see the result in 2047. It's about 23 years, 24 years now. So we're also looking for collaboration with many people. So we've just connected with international students. They come to work with us, internships and all. So things like that. Yeah. Thank you, Modesta. Munguri, next. आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे मोनेस्टर ने बताया कि ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस का जो काम है वो कहीं ना कहीं इनकी खासी टाइप से मेल खाता है, कल्चर से, फिलॉसफी से। मुझे वही जानना था आपसे कि ये रिवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? बिकॉज रिवाइंडिंग हम लोग एक नया वर्ड है जो आजकल काफी सुनने लगे हैं, पर क्या इसके रूट्स आपकी मिशन कम्युनिटी के प्रैक्टिसेस में थे हमेशा से, जो आज की आप वापस प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो पहले आप थोड़ा सा रिवाइल्डिंग के बारे में बताइए हमें, और कैसे इसकी सोच जो है मिशन कम्युनिटी से जुड़ी हुई है।
थोड़ा रिवेल्डिंग के बारे में बताइए, जो आप काम कर रही है मोलाई फॉरेस्ट में, उसके बारे में बताइए हमें, और उसकी सोच, वो करने के पीछे जो सोच है वो कहाँ मिशन कम्युनिटी के कल्चर या फिलोसफी से मेल खाती है? अभी जो मोलाई कैथोलिक के पिताजी का फॉरेस्ट में जो ऑलरेडी पिताजी ब्रीड कर चुका है, और ये मैं यंग जनरेशन की तरफ से मैं पिताजी के साथ बचपन से मैं मतलब 3 ईयर से मैं पिताजी के साथ वो जो भी काम करता है वो बचपन से मुझे सिखाते आया है। वो सीड को मतलब कलेक्शन करके वो जो भी नया एरियाज है, पूरा सॉइल एरिया है, वहाँ पे आपका जो भी मोलाई काफी हुआ है वो पूरा सॉइल एरिया है। वहाँ पे हम लोग बचपन से पिताजी ने मुझे सिखा है, जो भी सॉइल एरिया का काम है वो इतना आसानी नहीं है, लेकिन वहाँ पे हम लोग वो मिट्टी का कलश होता है वो पहले वो लेके आया, उसके बाद बेम्बो का ग्रास को वहाँ पे मतलब ये आपके ट्राइबल प्रैक्टिस, मिशन के ट्राइबल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है? हाँ, वो जुड़ा हुआ है। वो मिट्टी का कलश को थोड़ा मतलब इतना छोटा, मतलब ये वहाँ मिट्टी के अंदर ये कलश के अंदर पानी लगता है, वहाँ पे थोड़ा इतना बड़ा ये कलश को हाँ बनाता है। उसके बाद वो बेम्बो का जो भी ग्रास है वहाँ पे थोड़ा करके वो पानी लेता है। उसके बाद वो सॉइल एरिया को कैसे मतलब अलग एरिया मतलब जुड़ाना है, वो पिताजी ने मुझे बचपन से सिखाया है। वही काम मतलब करके अभी सॉइल एरिया में नहीं है, वो एक डेफिनेटली एक ऐसा एरिया है वहाँ पे जो भी प्लांटेशन जो भी पौधा लगाता है वो अभी खुद ब खुद ही होता है। वो हम लोग का कम्युनिटी का वहाँ पे बहुत मतलब हम कम्युनिटी ऐसा है, वो नदी का किनारे मतलब बचपन से मतलब वो कम्युनिटी मिसिंग कम्युनिटी वो नदी का किनारे में रहता है। उन लोग का मानना है एक सिंपल सा एक जीवन जियो, मतलब काम कर जाओ, ऐसे मतलब चलना है। लेकिन वो काम को हम लोग पिताजी ने जो भी सिखाया है वो कैसे मैं आगे लेके जाऊं, यही मेरा अभी तक सोच है, काम है। पिताजी का जमाना से थोड़ा अलग मैं यही काम कर रहा हूँ। और पिताजी का जमाना से एक आदमी ने 550 हेक्टेयर का इतना बड़ा मोलाई का नहीं बना दिया, लेकिन अभी कम्युनिटी के साथ मिलकर एक पिताजी से भी जितना उनका सपना है वो पूरा ब्रह्मपुत्र का आइलैंड को ग्रीन करना चाहता है, वो कम्युनिटी के साथ मिलकर हम लोग प्लांटेशन का टाइम में प्लांटेशन कर रहा हूँ और सीड कलेक्शन का टाइम ये कलेक्शन कर रहा हूँ। वहाँ पे ना अभी बहुत सारा स्टूडेंट भी आता है, वहाँ पे ये फील्ड स्टडी के लिए आता है, रिसर्च पर्सन के लिए आता है। लेकिन ये लोग करता है कम्युनिटी के साथ ही मिलकर, ये लोग ये जो भी काम है ये चला जाता है। उन लोग का काम हो गया उसके बाद चला गया। लेकिन वहाँ का जो भी हमका कम्युनिटी वो वहाँ पे हमका घर विलेज है वो को, लेकिन वो थोड़ा एक दिन ही रहता है, इतना काफी नहीं है। लेकिन उन लोग को और ये काम सिखाना है, सिखा भी रहा हूँ। जो भी एक आदमी ने बनाया ये काम को हम लोग कैसे आगे लेके जाएगा, ये कैसे मतलब सोचना है, यही हमका काम है। और जो भी होगा मतलब कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना है। और
ये जितना भी खाली एरिया से तब फिलअप करना मतलब करना पाएगा, यही है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है, जैसा आपने मुझे बताया, क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी के समय में जैसे उन्होंने कंजर्वेशन की अप्रोच ली थी कि पेड़ लगाने की, क्या आज के तारीख में भी उतना ही आसान है कंजर्वेशन करना आपकी नजरों से? क्या पेड़ लगा के कंजर्वेशन आज की तारीख में भी हो सकता है, सिर्फ कि उसके अलावा भी बहुत चीजें आपको देखनी पड़ती है? पिताजी का जमाना और यही जमाना बहुत फर्क है। पिताजी का जमाना में तब वो फॉरेस्ट बनाया है, तब वहाँ पे इतना जीव जंतु नहीं आया था, लेकिन अभी का टाइम वहाँ पे बहुत टाइगर, एलिफेंट्स, राइनो, डियर्स और बर्ड्स बहुत मिलता है वहाँ पे। यही तब वहाँ का जो पिताजी का वो 46 का ईयर्स में वो जो भी मतलब करके हम उनको दिखाया है वो बहुत टफ है उनका, और मेरे लिए भी इतना आसानी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब काम करता हूँ तब लोगों को, कम्युनिटी को बहुत मतलब उनके साथ बातचीत करना और ये डिफरेंट बहुत मतलब वहाँ पे हम लोग को दिक्कत आता है, बहुत दिक्कत आता है। तो आज भी वही दिक्कत है, लेकिन तब भी थोड़ा कम्युनिटी के साथ बात करके, काम करके थोड़ा मतलब उन लोग को समझा पाया। लेकिन ये यंग जनरेशन को मैं ये उन लोग का साथ यही अंदर से मैं घुसना चाहता हूँ, वो बच्चों का साथ वो बचपन से मतलब पेड़ पौधा के बारे में मतलब उनको सिखाना है, नहीं तो ये ओल्ड जनरेशन को तो सिखाना कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बच्चों के साथ, नया जनरेशन के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ। We had the same chat outside. Please continue. और ये मुझे नया जनरेशन को मैं ये भी आज जितना भी यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन नया जनरेशन को मैं यही बोलूँगा, जब ये पेड़ पौधा को आप ये अपना भाई बहन जैसा प्यार नहीं करेगा, जब आप लोग प्रकृति को मतलब अपना नहीं मानेगा तो अभी के टाइम में ना इतना मतलब जीना इतना मुश्किल है। ये प्रकृति नहीं रहेगा तो हमको जीने का कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना है, मेरा पिताजी के बाद कोई मेरा वो एक दुनिया है, वही दुनिया है, ये प्रकृति है। ये पिताजी जो एक ना एक मतलब उन लोग को तो जाना ही है, मतलब मरना ही है। उसके बाद जो भी मेरे पास रहेगा वो प्रकृति रहेगा, प्रकृति नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जिंदे रहेगा। इसलिए मुझे एक रिक्वेस्ट है, ये हर दिन सबका मतलब बर्थडे आता है, वो बर्थडे का दिन केक काटता है, बहुत केक। मैं आज तक मैं भी इतना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड आता है वो लेके आता है। लेकिन मेरा ये उन लोगों के लिए मेरा यही एक बात बोलना चाहूँगा, ये बर्थडे का दिन हर अपने के लिए एक पौधा मतलब आप लोग खुद के लिए ये लगाओ और इसको ही मतलब बाकियों को छोड़ो। यही पौधा को आप बड़ा करके वो आप लोग का खुद का जीवन के लिए, ऑक्सीजन के लिए मतलब ये पेड़ पौधा को मतलब बहुत प्यार करो, यही मेरा सलाह है। And I think on later note it is also good अगर हम पेड़ पौधों, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बहुत होता है, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, करता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं है ये। I think you're getting your message across। आपका अगर सबको समझ में आ रहा है तो ताली बजा रहे तो आपका हिंदी काफी अच्छा है। Also I feel कि on a lighter note, I mean if people start having trees as their brothers and sisters and their relatives, people will have lesser problematic relatives in their families.
moving on, Nunu, can you please shed light on the role that women can play in conservation, in meeting up to the challenges of ecological challenges in Arunachal Pradesh from your community's perspective, not in general, very specific to your community? What role can the women play? Thank you for the question, because when we talk about women, what role we can play, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस चीज़ में, इस फील्ड में मैं खुद हूँ, और उसी का वजह से मैं भी I'll try my best to answer it appropriately. हम लोग का जगह पे we are patriarchal society है, हम लोग का ट्राइबल एरिया लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो कहीं ना कहीं me being a woman, me being a child, a girl child in that society, कहीं ना कहीं हम लोग फेस किया है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में क्या चीज़ होता है वो हम लोग को सबको मालूम है, और स्पेशली इन ट्राइबल एरिया हम लोग का जगह पे क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग को फेस करने मिलता है। हमने वो चाइल्डहुड को बिता के अभी जो स्टेज पे मैं हूँ उसी को ही मतलब आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू kind of talk about the role we can play in the society. और जब हम लोग ये environment का बात करते हैं, like I have mentioned before कि जूम कल्टीवेशन में हम लोग जो बहुत सारा जो इको फ्रेंडली नहीं है वो चीज़ प्रैक्टिस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का जगह पे वुमेन जूम कल्टीवेशन में भी बहुत रोल प्ले करता है, लाइक फिजिकल लेबर भी ज़्यादातर वुमेन ही करते हैं। एंड देन अभी हम लोग यंग जनरेशन ये ट्राई कर रहे हैं, यंग जनरेशन वुमेन लीडर या कुछ भी हो, हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि क्यों ना वी नो दैट कि हिली एरिया से जितना भी ट्राइबल पीपल है वी आर वेरी मच रूटेड टू आवर कल्चर, तो हम लोग का जगह में भी वुमेन are very rooted to our culture, and जो cultural attire बनाया जाता है, like our Wancho people, our Wancho lady, they are very much experts in beads making, like the one I'm wearing now. ऐसा टाइप का कुछ beads making, handloom, weaving में वो लोग बहुत expert होता है। तो we are trying our level best कि क्यों ना हम लोग जूम कल्टीवेशन जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो इको फ्रेंडली नहीं है, ये चीज़ से हम लोग को इन्वायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ये चीज़ का वजह से हम लोग को फ्यूचर को इम्पैक्ट हो रहा है। तो वुमेन हम लोग पहले तो इतना जानकारी वुमेन होके भी, नॉलेजेबल होके भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला जाता था, लेकिन अभी थिंग्स आर चेंजिंग, टाइम इज चेंजिंग कि वुमेन को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलता है, कहीं ना कहीं हम लोग को वो चीज़ हम लोग का जो एक्सपर्टीज है उसको हम लोग को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मिलते हैं। तो हम लोग का लोकल एरिया में अभी एक सक्सेस स्टोरी भी है कि जो एंटरप्रेन्योर निकल के उभर के आ रहा है अभी, वो एक लेडी एंटरप्रेन्योर की है जो बीड्स मेकिंग में एक्सपर्ट है, और वो अपना बीड्स को एक्सपोर्ट करता है, सेल करता है। तो वी आर ट्राइंग कि पूरा हम लोग का कम्युनिटी में हम लोग ऑलरेडी बोर्न एक्सपर्ट है बीड्स मेकिंग, वीविंग और हैंडलूम्स में, तो हम लोग जूम कल्टीवेशन से शिफ्ट करके हम लोग ये चीज़ को ही अपना के बीड्स मेकिंग को और वीविंग हैंडलूम को अपना के एक सोर्स ऑफ लिविंग हम लोग इसको अपनाने से ठीक है, ऐसा हम लोग वी आर ट्राइंग टू अवेयर द पीपल। तो वुमेन तो हम लोग जानते हैं कि बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हर चीज़ में, तो घर से ही सब कुछ शुरू होता है, घर से स्टार्ट होने से सोसाइटी में, कम्युनिटी में, और ऐसा ही फैला जाता है। तो हम लोग यही ट्राई करते हैं कि वुमेन हम लोग का जगह का जितना भी है, जो खुद जिसमें एक्सपर्ट है, जो बीड्स मेकिंग लोग में जैसे एक्सपर्ट है, उसको ही हम लोग अपना रहे हैं, उसको ही हम लोग शिफ्ट, मतलब जो इको फ्रेंडली नहीं है वो प्रैक्टिस को छोड़ के, जो पहले उसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइवलीहुड माना जाता था, उसको छोड़ के हम लोग ये न्यू सोर्स ऑफ लाइवलीहुड को अपनाया जाने के लिए ही हम लोग जो ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं वुमेन हम लोग को सोसाइटी में, ये बहुत बड़ा
मतलब चेंज है, प्रोसेस इनिशियल स्टेप है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग वी बीइंग वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। और कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि लड़की लोग है इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता होगा, वो होता होगा पेट्रियार्कल सोसाइटी में तो और भी साइड में रखते हैं। तो ऐसा नहीं होने के लिए हम लोग जो खुद एक्सपर्ट है उसी चीज़ को हम लोग सिखाएगा, यंग जनरेशन को सिखाएगा। ये हम लोग का एक्सपर्टीज, हम लोग का टैलेंट को पास ऑन करने के लिए हम लोग वो चीज़ को यूज करेगा, तो वो चीज़ हम लोग रोल सोसाइटी में प्ले करेगा, तो इट विल बी ए वेरी एग्जाम्पलरी स्टेप होगा हम लोग का। एंड यस, हम लोग का सोसाइटी में ये स्टेप और ये रोल जो वुमेन जो प्ले करने के लिए शुरू हो गया, एंड अभी और आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे रोल। मतलब हम लोग का वुमेन जो बहुत we're trying to play a vital role, and we are in the process। और कुछ तो अभी लाइक एंटरप्रेन्योरशिप भी हो गया, और लाइक मेनी ऑफ लाइक इन जो बाहर में स्टॉल लगा हुआ है वहाँ में भी हम लोग का बीच मेकिंग का कुछ माला लोग लगा हुआ था, वहाँ से हम लोग मालूम चलता है कि यस हम लोग का बीच मेकिंग एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको एक्सपोजर मिल रहा है। तो यस कभी फ्यूचर में हम लोग वुमेन का जो रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग उसी चीज से कुछ गुड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। So I think to summarize, you want to say that the role that women can play is to have their own ways of having a financial independence and to reduce their dependence from their, like, kind of find their own form of livelihood, which I feel is a very nuanced answer. So thank you for that. रविंद्र जी, आपके लिए एक सवाल है जो मेरा आखिरी सवाल होगा। वैसे आपके लिए 4 सवाल थे पर एक ही सवाल में आपने 3 का जवाब दे दिया। तो आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि कम्युनिटीज जो उड़ीसा की कोस्ट में रह रही हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस किस तरफ चेंज करे हैं? एक डिस्ट्रक्शन से कंजर्वेशन की तरफ वो लोग कैसे मूव हैं आज की तारीख में? कौन से प्रैक्टिसेस हैं जो जिसमें वो आपके साथ जुड़ते हैं ऑलिविटी टर्टल्स को बचाने के लिए, बट एट द सेम टाइम आज की तारीख में वो मॉडर्न चैलेंजेस भी क्या है कम्युनिटीज फेस करती है जो ऑलिविटी टर्टल्स फेस? देखो जी, अभी तो उड़ीसा कोस्ट में जो सी टर्टल का जो ब्रीडिंग सीजन होता है नवंबर से लेके मई महीने तक, जो 7 मंथ्स का जो पीरियड होता है, जो ऋषिकुल्या जो बीच है 20 किलोमीटर एरिया नो फिशिंग जोन गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट भी उनके साथ है। जो 20 किलोमीटर एरिया में जो नो फिशिंग जोन डिक्लेयर किया, उसी एरिया में 10 विलेज है। 10 विलेज को जो 4000 जो फैमिली है, जो फिशरमैन कम्युनिटी जो सी में जो फिशिंग करता है, ये लोग को 15-15 हज़ार कंपनसेशन देते हैं। अभी 4 साल हो गए। ये हमने तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी किया, क्योंकि ये लोग हमको टर्टल कंजर्वेशन करना है, तो टर्टल का कंजर्वेशन करना है तो कम्युनिटी के साथ करना है। उसी हिसाब से कम्युनिटी लोग भी हमको सपोर्ट करता है, क्योंकि जो एरिया में टर्टल जो नेस्टिंग करता है, ये लोग हमारे साथ बीच ट्रेनिंग सी टर्टल जो नेस्टिंग करते हैं, और नेस्टिंग से हैचिंग होने का टाइम तो 50 डेज इनको प्रोटेक्शन करना है। जो प्रोटेक्शन करने से क्या होता है ना, जो आईना जो वाइल्ड गोट जो आता है, ये जो जानवर को भगाने के लिए जो लोग अंडा खाते हैं, इनका भी मुँह से अंडा का टेस्ट भगा दिया, क्योंकि वो लोग हमको सपोर्ट करता है कंजर्वेशन के लिए। और जो बीच क्लीनिंग, तो नेस्टिंग का टाइम प्रोटेक्शन, जो बेबी टर्टल हैचिंग होगा, जो मास टेस्टिंग जो होगा ना, पहले तो 3-4 दिन था, आजकल तो 10 दिन तक मास टेस्टिंग होता है। ये भी 10-15 दिन इतना लाखों तरह बेबी टर्टल हैचिंग होगा, क्योंकि जो जगह में 5-6 लाख 7 लाख टर्टल आके नेस्टिंग करेगा, तो एक टर्टल 100 to 160 एग लेइंग जब करेगा ना, कम से कम 95% हैचिंग होगा। वो जो बेबी टर्टल सही में जाएगा। कुछ बेबी टर्टल क्या होता है ना, जो सिटी का लाइट, इंडस्ट्रियल का लाइट, ये सब लाइट का जो रोशनी से जो डिसोलेट हो जाता है, इनको कलेक्शन करके पानी में छोड़ना बहुत कष्ट, हमारे लिए बहुत मुद्दा था, बहुत कष्ट भी था। हमने ये सब कैसे करेगा, इतना लाखों
तरफ टर्टल हैच होता है, लाइट के वजह से सब सिटी के तरफ भाग जाता है। इनको कलेक्शन कर रात भर ड्यूटी करेगा, सुबह जाके बेबी टर्टल कलेक्शन करके स्कूल स्टूडेंट, गाँव का बच्चा को, लेडीज को बुला के पानी में छोड़े। फिर हमने 2003-04 का टाइम एक आइडिया लगाया, जो बीच में मास टेस्टिंग हुआ है वो जगह पे क्योंकि मस्कीटो नेट 1 फुट का हाइट में कम से कम 2 किलोमीटर एरिया तक छोटा बाउंड्री लगा रहता है। अभी तो वो बाउंड्री लगाने से जो हैचिंग हो गए लाइट रात का जो नेचुरल सी में जाते जाते बाकी जो रुक जाता है वो बाउंड्री लाइन में रुक जाता है। फिर भी जो जक्कल डग हाइना को भगाने के लिए अभी 5 किलोमीटर एरिया फेंसिंग भी है, जो जगह में टर्टल को अंडा को सेव करना है, फिर बेबी टर्टल को सेव करना है, ये सब पानी में छोड़ना है। जो ट्रेडिशनल फिशरमैन सी में जाता है, इनका जो मोनोफिल नेट यूज करता है, इनमें टर्टल का कुछ नुकसान होता नहीं। जो ट्रॉलर वाला जो इलीगल फिशिंग में करते हैं तो उनका बोट में जो इलीगल की वजह से जो मदर टर्टल मरा हुआ था, आजकल अवेयरनेस कर दिया, सी में 10 किलोमीटर के अंदर फिशिंग करने का जो नियम लगा दिया, अभी टर्टल का मोर्टेलिटी कम हुआ। क्योंकि ये सब करके करके हमने 2010 को एक वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेशन हमने शुरू किया। जो वर्ल्ड टर्टल सेलिब्रेशन जो इंटरनेशनल लेवल में होता है, हमने हमारा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा गांव में पहले शुरू किया, अभी जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में करते हैं, पूरा फिशरी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर से लेके पूरा जो हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोग जो भी है सबको बुला के अच्छा प्रोग्राम करता है। जो प्रोग्राम टीवी में, पेपर में सब आता है, लोग को पास मैसेज जाता है, सी टर्टल का डे आदमी का जैसे बर्थडे बनाते हैं, हम भी आदमी का जो बर्थडे जैसे मनाते हैं, हमने भी साल का जो मई 23 वर्ल्ड सी टर्टल डे सेलिब्रेशन करते हैं। ये करने से स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट से लेकर एसएचजी सबको बुलाते हैं। कम से कम 400-500 आदमी को जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो फिशरमैन कम्युनिटी एरिया में, सबको गांव का मुखिया को सब बोलने से ये लोग थोड़ा मन में तो इतना अच्छा काम करते हैं, इनके भी एक सेलिब्रेशन डे भी है। और जो स्पैरो का जो कंजर्वेशन कर रहे हैं वो भी मार्च 20 को भी वर्ल्ड स्पैरो डे भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ वीक भी कर रहे हैं। इसको धीरे-धीरे करने के बाद जो वाइल्ड लाइफ में जो समुद्र का जो मछली का जो इंडेंजर जो वाटर डॉल्फिन से लेके व्हेल शार्क से लेके जो सी में हमको दिखता है वो सबको कैसे कंजर्वेशन करना है, इन लोग के पास मैसेज देने से अभी कल का दिन भी हम यहीं पे था, हमको एक मैसेज आया मेरा घर से 30 किलोमीटर दूर में व्हेल शार्क जो 22 फुट का आगे किनारे लगा हुआ है, वो भी गाँव लोग बहुत कोशिश किया पानी में छोड़ने के लिए। 22 फुट का जो व्हेल शार्क को बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया, बाद में उनको मर गए। और फिर ये सब काम करना जो पड़ता है, ये तो 2024 का अप्रैल 19 एक हमारे लिए एक अच्छा दिन था। जो स्पेसीज जो आता है इंडिया में पहले बार लागर है टर्टल, जो आके मेरा घर के पास जो आके नेस्टिंग किया। लागर इंडिया में रिजल्ट नहीं है, वो लागर है टर्टल आके ऋषिकुल्या बीच में अंडा दिया था। वो भी हमारे लिए खुशी का बात है। और बाकी साइंटिस्ट जो रिसर्चर जो लोग सब काम करते हैं उनको भी मैसेज दिया, उनको फोटो भी भेजा। अभी 2 साल से भी ग्रीन टर्टल जो सेकेंड लार्जेस्ट, वो भी आके 10-12 टर्टल आके नेस्टिंग करते हैं। ये टर्टल जो माइग्रेटरी बाढ़ जैसा है, जो बाहर स्टेट का जो अपना मान अच्छा देखना है, ग्रीन टर्टल का नेस्टिंग का जो बीच है, लेकिन ऋषिकुल्या बीच को ग्रीन टर्टल का नेस्टिंग देखा, लगरेट को देखा, अलीबिल्डे का देखा। और बाकी जो माइग्रेटरी बर्ड्स, एक विम्बल बर्ड्स अभी रिसेंटली विम्बल बर्ड्स है ना, जो फ्रांस से आया था, विम्बल बर्ड्स फ्रांस से आया था, वो अप्रैल 20 तारीख को मेरे गांव के पास आया। वो उसका पैर में टैग लगा हुआ था, इसका जो शरीर में ट्रांसमीटर लगा हुआ था। मेरे को मेरा फर्स्ट देहरादून से फोन आया, रवि जी तुम्हारे गांव के पास एक बार्स उनका शरीर में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, वो जीपीएस लोकेशन
तो भेजा। हमने वो ट्राई करके उनका फोटो खींचा। फोटो खींच के न्यूज़पेपर में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी मैसेज दिया था। फिर भी सबको न्यूज़पेपर आने से सबको पता चलता है। फिर भी हमारे गांव के पास जो क्या बोलते हैं ना, 100 kids एवरी ईयर 1000 100 kids आता है। कुछ 100 kids का पैर में टैगिंग लगता है, नेक में टैग लगता है, जो मंगोलिया से आता है, जो लद्दाख से आता है, जो अदर से जो आता है। सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी जो रिसर्च पर्सन को, जो BNHS को भी मैसेज देता है। बाकी 2003 मार्च 10 तारीख को एक टर्टल फिलीपाइन से आया था, एक अलिब्रिडी। वो इनका सर के ऊपर भी टैगिंग था। हमने भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मिलके 35,000 टर्टल को टैगिंग किया। और 94 से 2000 का जो टाइमिंग है, वो टाइम के अंदर पूरा उड़ीसा का जो 480 किलोमीटर को 3 बीच है, उसके बीच और देवी रिवर माउथ एयर वाटर में जाकर ट्रेकिंग किया। समुद्र में जो टर्टल का बैटिंग का टाइम पे ट्रेकिंग किया। अभी जो सब धीरे-धीरे सब रिसर्च काम कर रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, IISc बैंगलोर और ZSI जो कलकत्ता जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, BNHS है, जो रिसर्च पर्सन सब हमारे साथ जो हम उनके सपोर्ट देते हैं। मेरा ग्रुप का अभी 56 मेंबर है जो वॉलंटियर के साथ काम करता है। कुछ लड़का भी अभी फर्स्ट डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है। अभी ये तो हमको टर्टल का साथ काम करके हमको इतना अभी हो गया हमारा लाइफ में। गवर्नमेंट जॉब था मैं भी छोड़ दी, क्योंकि जॉब करने के लिए टाइम नहीं। दुनिया में ऐसा 30 कंट्री का लोग के साथ हमारा फ्रेंडशिप है। फिर इंडिया में पूरा सिटी, जितना सिटी सब लोग मेरे को जानते हैं। जो आता है टर्टल, जिसको दिखना है तो उड़ीसा चलो, जगन्नाथ मंदिर देखो, कोणार्क सन टेम्पल देखो, और माइग्रेटरी बर्ड्स देखना है तो चिल्का लेक के जाओ, और बाकी डॉल्फिन देखना है तो चिल्का लेक, इरावली देखने के लिए जाओ। फिर अलिब्रिडी देखना है तो उसके लिए जाओ। मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो वाइल्ड लाइफ है सबसे अच्छा कंजर्वेशन है, क्योंकि ब्लैक बक के लिए मेरा डिस्ट्रिक्ट सबसे बिग नंबर है, क्योंकि 4000 ब्लैक बक है। लोग पूरा कम्युनिटी कंजर्वेशन। साहू जी, आई थिंक समरी में आप ये कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में आपके डिस्ट्रिक्ट में कंजर्वेशन मेरा डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। फिर भी मेरे को स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे को ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन पोस्ट दिया है। 29 को एक सी टर्टल का सिपशो में अभी भी हमारा जो एशियप ने आज फोन किया था, साहू जी तुम कहाँ पे, तो अभी तुम्हारा देखने के लिए तुम मिलते नहीं। मैं सर अभी तो एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप है जो बालीपुरा फाउंडेशन को इन्वाइट किया है। हमने अभी गुवाहाटी में है, तो तुम कब आएगा? मैं सर 27 को पहुंच जाएगा। जाने के बाद हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है मेरा 10 किलोमीटर जो बीच है, तो 10 किलोमीटर बीच जीरो प्लास्टिक। अभी हमको मिनिमम 10 to 12 टाइम्स बीच क्लीन करना है 10 किलोमीटर एरिया। जो स्कूल स्टूडेंट्स, SSG ग्रुप और जो फिशरमैन कम्युनिटी और बाकी जो कॉलेज से लेके पुलिस स्टेशन सब जो NCC स्टूडेंट सबको बुला के, जिसको बोलते कोई मना करते नहीं, क्योंकि हमारा जो गर्व है जो अलिब्रिडी है, जो मेन टर्टल जो मेरा स्टेट को जो दो जो जगह को आता है गाइड पता हो उसके लिए। अभी तो ये काम करके हमको जो पैसा लेते बुक पे काम करते थे, अभी 2 साल हो गया। अभी जो टाटा स्टील फाउंडेशन जो शुरू किया गांव का लोग को लेके, मैं भी अभी टाटा स्टील फाउंडेशन कोरोना प्रोजेक्ट में के साथ अभी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमको भी जीने के लिए तो पैसे का जरूरत है, क्योंकि कितना दिन मुफ्त में काम करें। जो जगह में काम मिलता है वो जगह में काम करने से पहले इतना फोन आता है तो सबको सर्विस देना पड़ता है, क्योंकि टर्टल सीजन हो जाता है ना 6 महीना। जो टर्टल लाख जो टर्टल आता है वो मीडिया वाला से लेके जो साइंटिस्ट जो रिसर्चर देखने वाला पूरे इंडिया को लोग वीडियो हो जाते हैं। अभी भी आपको कोई किसी को इच्छा है टर्टल को मास टेस्टिंग देखना है तो ऋषि के लिए आ जाओ, अच्छा से देखेगा, क्योंकि मैं भी जो टाइम पता होगा वही टाइम से आप आ जाओ। एंड पार्ट ऑफ दिस इन्विटेशन इज कि जैसा आपने देखा, मतलब साहू जी हमारे बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं,
मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट में हम लोग काफी बात करते रहे, कहानियां सुनते रहे। तो अगर आपको सी टर्टल्स देखने और उनकी कहानियां सुननी है तो प्लीज साबू जी से कनेक्ट आइएगा। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज टुडेज डिस्कशन। इफ वी हैव एनी हैव सम ये काम करके जी स्टेट में मेरे को टर्टल में अवार्ड भी मिला। ये जो उड़ीसा का टर्टल में कंजर्वेशन बस फ्रेश वाटर टर्टल, सी टर्टल, ये सब काम करने के बाद लोग सब चाहते हैं पूरा कोस्ट को हमको घूम के सबको अवेयरनेस दिया, देने से लोग के साथ हमारा अच्छा संपर्क है। भी हमको कंजर्वेशन इम्पोर्टेंस है और भी मैनग्रोव फॉरेस्ट भी हमने प्लांटेशन किया और बाकी क्या होता है प्लांट ट्री भी प्लांटेशन किया। स्कूल स्टूडेंट हमारा मेन मुद्दा। Thank you. If there are any audience questions, I don't see much audience, but for whatever they are, if you have any questions, we would like to field them right now. Okay. Thank you, Ravindraji. Thank you, Morningstar. Thank you, Munduni, and thank you, Nonu. You have been a wonderful set of panelists. You've been a wonderful set of panelists, and it was amazing having a chat with you before and during the panel discussion. Thank you. And thank you to Pali Bala Foundation for giving us this opportunity to come on one forum and share our stories.